Hello viewers, today we are going to discuss the topic ECT, which is electroconvulsive therapy. ECT is actually a somatic treatment which is started by Bini Sarleti in the April 1938. What is ECT? ECT is actually the artificial induction of the grand mal seizure through the application of the electric currents to the brain. What is the stimulus given and how it is given? It is applied through electrodes, and where it is placed bilaterally and the unilaterally. Bilaterally in the frontotemporal region and unilaterally in the non-dominant side. What are the parameters used? Parameter which used is voltage, which is 70 to 120 volts, and duration is 0.7 to 1.5 second. Now, what is the types of seizure produced? Which is we can see that grand mal seizure is of two types, which is of tonic phase, which lasts for 10 to 15 seconds, and clonic phase, which lasts for 30 to 60 seconds. What is the mechanism of action? No exact mechanism of action is known here, but according to one hypothesis, ECT affects the catecholamines pathway, which is between the diencephalon or limbic system. Limbic system, we know that it is responsible for the mood disorders. So, it is the pathway of the catecholamines which the ECT affects. What are the types of ECT now? According to, based on the how it is given, like whether muscular relaxants are given or not, or general anesthesia is given not. There are two types, direct or indirect. Indirect, we do not give any type of muscular relaxations or anesthesia, and in the modified ECT we give muscular relaxants and the general anesthesia. Now, what is the frequency and the number? How many times and what is the rate of giving ECT? Frequency is 3 times a week, which is as indicated by the physician, and total number is 6 to 10 as indicated by the physician. Then application of electrodes, either unilaterally or bilaterally. So bilateral electrodes, it is placed, where it is placed, the location you have to clearly note that when you are drawing a line from the lateral canthus of the eye to the tragus of the ear, this imaginary line will be having a midpoint. From that midpoint to we have to take 2.5 to 4 centimeter above, and there you have to make a point where now here the electrodes are kept. Okay, now unilateral electrodes is the electrodes which is placed only one side of the head. Now we can say which is the safer. So unilateral is the safer, क्योंकि unilateral में क्या होता है कि जो मेमोरी लॉस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं. फिर इंडिकेशंस आपको क्या याद रखनी है? मेजर डिप्रेशन. मेजर डिप्रेशन में मेनली ये दी जाती हैं, और भी जैसे हैं और भी कॉजेज़ जैसे सीवियर कैटाटोनिया, सीवियर साइकोसिस, देन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 2 ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस. नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे? जैसे कि एब्सोल्युटली इन द रेज्ड ICP, अगर ICP बढ़ा है तो एकदम मना ही होती है, आपको ECT उसमें नहीं देना है. और भी दूसरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल हिमोरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, congestive heart failure, CHF, pneumonia, and retinal detachment. Okay, now we are going to discuss about the side effects. Side effects, we know that there is memory impairment. अब memory impairment की जब बात हो रही है तो इसमें क्या होता है? temporary memory impairment होती है, permanent नहीं होती है. तो temporary जो memory है वो impaired हो जाती है, यानी हम लोग का इसमें इन जो amnesia होता है वो कैसा होता है? इंटेरोग्रेट एमनेसिया होता है. फिर इसमें क्या होता है? ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, अनस्टेडी गेट, टंग बाइट, इनकंटिनेंस वगैरह वगैरह. फिर क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं, डिस्ट्रिथमियाज हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है. फिर अगर ECT टीम की बात करें तो साइकेट्रिस्ट्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स, ट्रेंड नर्सेज, एड्स. अगर हम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की बात करें अब, तो उसमें 3 रूम होते हैं. पहला होता है वेटिंग रूम, दूसरा होता है ECT रूम, तीसरा होता है रिकवरी रूम. तो वेटिंग रूम क्या होता है? वो एक प्री ECT रूम रहता है. फिर वहाँ पे पेशेंट्स वेट करते हैं. फिर ECT रूम में क्या होता है? वहाँ पे सारे मशीन्स होते हैं जो ECT के लिए ज़रूरी होती हैं. फिर रिकवरी रूम, आफ्टर द पेशेंट हैज़ अंडरगॉन ECT, द पेशेंट नाउ रेस्ट इन द रिकवरी रूम.
तो ईसीटी रूम में क्या ईसीटी मशीन रहेगी, फिर एनेस्थेटिक अप्लायंस रहेंगे, सक्शन अपैरेटस रहेगा टू सक एक्सेस म्यूकस और एक्सेस सिक्रीशन, देन मास्क रहती है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टंग डिप्रेसर रहता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट टंग बाइट, देन माउथ गैग होता है टू प्रिवेंट डैमेज टू द टीथ, एंड देन इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। अगर एक्सेस एनेस्थीसिया दिया गया हो तो उससे रिकवरी करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी ड्रग्स वहाँ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं रोल ऑफ नर्सेस की तरफ। तो सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन हम लोग जो लेते हैं उसमें क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री और साइकेट्रिक हिस्ट्री उसकी देखते हैं पेशेंट की, फिर पेशेंट का नॉलेज असेस करते हैं, फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो रहता है वो पेशेंट से साइन करवाते हैं, फिर जो वाइटल साइंस रहता है वो पेशेंट का नोट करते हैं। पेशेंट को हम लोग 4 से 6 घंटे तक एम्प्टी स्टमक रखते हैं, और जो डाइज़ेपैम, बारबिट्यूरेट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स की दवा है उनको हम लोग विदहोल्ड कर लेते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें नहीं देना है जब तक ईसीटी ना हो जाए। फिर हेड में शैम्पूइंग करते हैं, ऑयल नहीं रहना चाहिए ताकि क्या हो, अच्छे से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो। फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। फिर हमें एट्रोपिन देना है 0.6 mg, पेशेंट को IM देना है, और सबक्यूटेनियस हम लोग दे सकते हैं आधे घंटे पहले, और आधे घंटे पहले हम दे सकते हैं सबक्यूटेनियस, और अगर हम लोग जस्ट पहले देना है ईसीटी के जस्ट पहले तो हम लोग IV दे सकते हैं। फिर इंट्रा प्रोसीजर केयर क्या होता है, पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, पेशेंट के साथ रहते हैं ताकि उसकी एंजाइटी कम हो। फिर हम जो भी थायोपेंटल सोडियम है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं। फिर क्या करते हैं, थायोपेंटल का मेन काम क्या है कि वो सिडेशन प्रोड्यूस करता है, वो कितना हमें देना है, 3 to 5 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। फिर सक्सिनाइल कोलिन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, वो कितना देते हैं हम, 1 mg पर kg बॉडी वेट। उसका क्या काम होता है, वो मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। फिर पेटेंट एयरवे इंश्योर करना, फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, माउथ गैग प्रोवाइड करना। फिर उस जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं उस एरिया को हमें साफ़ करना है, किससे, नॉर्मल सलाइन से या फिर 25% बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से या फिर कोई कंडक्टिंग जेल से। फिर हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी और स्टिमुलस ड्यूरेशन। फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होता है, वाइटल साइंस उसका नोट कर लेंगे प्रोसीजर के बाद। फिर ऑक्सीजन की सप्लाई तब तक देंगे जब तक उससे रेस्पिरेशन खुद स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट ना कर दिया हो। फिर क्या करेंगे, उसका पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन को एसेस करते हैं हम, और उसे रेस्टलेसनेस को उसकी एसेस करते हैं कि पेशेंट रेस्टलेस है या नहीं। फिर सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है, तो साइड रेल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उसे इंजरी से बचाया जा सके। अगर सीवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन है या रेस्टलेसनेस है तो हम लोग IV डाइज़ेपैम दे सकते हैं। फिर पेशेंट को रीओरिएंट करवाते हैं सिचुएशन से और लोकेशन से। फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स करते हैं, जो भी हमने प्रोसीजर किया उसका डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसका लिखते हैं, क्या जो भी मेडिसिन दिया गया और भी। अब हम लोग जो टोनिक और क्लोनिक फेज़ की बात किए थे तो उसका हम एक पिक्चर आप लोग से शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टोनिक फेज़ का एक फ़ोटो है, एक क्लोनिक फेज़ का एक पिक्चर है, और एक पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन फैटीग का एक पिक्चर है। तो टोनिक फेज़ में मोस्टली आप क्या नोटिस करेंगे, जो पेशेंट की बॉडी है वो आर्च हो जाती है, बैक जो उसका होता है वो आर्च्ड हो जाता है। और भी क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, उसको साइनोसिस होती है, फिर एपिलेप्टिक क्राई होता है, इनकॉन्टिनेंस होती है, और जनरलाइज स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड लिम्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है क्लोनिक फेज़ में, सलाइवरी फ्रोथिंग, साइनोसिस, आई ब्लिंकिंग, क्लोनिक जर्क्स ऑफ लिम्स, बॉडी एंड हेड। नाउ पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन में जो हमने देखा था कि पेशेंट को पोस्ट ट्रीटमेंट में हम ये चीज़ उसका चेक करते हैं और डाइज़ेपैम देते हैं अगर सीवियर हो तो उसमें क्या हम देखते हैं कि लिम्स और बॉडी लिम्प ना पड़ गई हो। तो आज का ये जो टॉपिक था वो था ECT के बारे में। ECT आप समझ चुके हैं, ECT क्या होती है, कब दी जाती है, किन पेशेंट में दी जाती है, और हमें नर्सेस को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ECT प्रोसीजर अच्छे से हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।